Welcome children. Children, this is the continuation to the previous videos of so-called basic terms. बच्चों हमारा अगला कंटेंट जो है दैट इज स्टॉक. अब बच्चों स्टॉक हम किसे बोलते हैं? चिल्ड्रन, एनी अनसोल्ड गुड्स विच आर लेफ्ट इन द बिजनेस. आपने गुड्स खरीदे, कुछ सेल कर दिए, बट सम आर येट टू बी सोल्ड. दैट इज टू से अभी वो सेल नहीं हो पाए. सो चिल्ड्रन वी कॉल इट एज स्टॉक. Children, see the example. This photograph in the left represents the whole go down where we have kept the goods that we have bought during the year, and till the end of the year we have sold all of them. ये वाला portion बच्चों हम नहीं बेच पाए. That is termed as stock. Children, for better understanding, I have taken an example. Vishal Enterprises bought goods worth rupees 1,20,000 during the year, either for cash or on credit. कैश में भी खरीद सकते हैं, क्रेडिट में भी खरीद सकते हैं. And out of these, goods worth rupees 95,000 were sold for 1,35,000. So children, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे कि ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा. The content is कि स्टॉक क्या हुआ. And goods worth 25,000 were left unsold at the end of the year. So children, it means out of total 1,20,000 worth of goods that we have bought, 95,000 worth of goods we have sold. हमने 1,20,000 के गुड्स टोटल खरीदे ड्यूरिंग द ईयर. आउट ऑफ दैट 95,000 के गुड्स हमने सेल कर दिए. तो बच्चों हमारे पास 25,000 रुपीज के गुड्स बच गए. दिस इज चिल्ड्रन कॉल्ड एज अनसोल्ड गुड्स, दैट इज स्टॉक. Continuing further children, we have the classification of stock. First, it is based on time period. Children, example is there. Taking an example that our session of doing business, जिसको हम आगे चल के accounting year बोलेंगे, is assuming January to December. It could be April to March, but for keeping the example easy, I have taken it as January to December. And at the end of the year, that is on 31st December 2019, we have some goods left unsold at the end. So children, these unsold goods will be named as closing stock. Now the question is this, sir ये जो बच गया, what we'll be doing it now? Children, again next year our session is from January to December, and we will be calling these goods जो last year बच गए थे in the next session, that is on January 1st 2020, by the name of opening stock as such. So children, remember what is opening stock? Unsold goods left at the end of previous year, available at the start of next, that is current year, for the purpose of selling in the current year. Children, we call this as opening stock. So children, last year जो बच गया, that is closing. Very same thing at the start of next year is called as opening stock. Next children, we have the classification of stock based on nature. Nature means that is उसकी variety you can say. Children, we have three classes here. First is called as raw material. Children, I take the example of a tannery or a shoe processing unit, जहाँ पे जूते बनते हैं, जूतों की फैक्ट्री. So children, raw material यहाँ पे क्या होगा? The amount of leather, the quantity of leather that we have bought, जो चमड़ा हमने बच्चों खरीदा, that is called as raw material. As the definition says, include stock of raw material purchased for using them in products manufactured but still lying unused. For example, value of cotton in case of cloth mill. तो बच्चों क्लॉथ मिल के केस में जो कॉटन होगा वो आपका रॉ मटेरियल होगा. शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के केस में जो बच्चों लेदर का स्टॉक हमारे पास है, दैट इज रॉ मटेरियल. देन चिल्ड्रन, व्हाट इज कॉल्ड एज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. बच्चों शूज का अगर हम एग्जांपल लें, सो वी सी दैट कुछ शू हमारे बन के तैयार हैं बट नॉट इन फुल फॉर्म, अभी वो सेल नहीं हो सकते. सोल बना लिया गया है बच्चों, लेदर की कवरिंग उस पर लग गई है, बट सम वर्क इज येट टू बी डन. तो वो बच्चों पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, तो वी कॉल इट एज वर्क इन प्रोग्रेस एज वेल एज सेमी फिनिश्ड गुड्स, जो अभी पूरे रॉ फॉर्म में भी नहीं है और पूरे फाइनल फॉर्म में भी नहीं है. देन चिल्ड्रन, जब हम इनको रेडी कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट, वी कॉल इट एज फिनिश्ड गुड्स. तो बच्चों याद रखिएगा, आई टेक अनदर एग्जाम्पल से ऑफ अ क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. जो हमने वूल या कॉटन खरीदा इज रॉ मटेरियल. जो बच्चों हमने शर्टिंग एंड शूटिंग्स बनाए,
आई रिपीट बच्चों, जो हमने शर्टिंग्स एंड सूटिंग्स बनाए उसमें से, बट अभी ट्राउजर्स एंड शर्ट्स हैव नॉट बीन स्टिच्ड, तो ये शर्टिंग एंड सूटिंग विल बी कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस और सेमी फिनिश गुड्स. देन चिल्ड्रन, जब आपने ट्राउजर्स एंड शर्ट्स स्टिच कर लिए एंड दे आर रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट, बच्चों वी कॉल इट एज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. चिल्ड्रन, आई होप सो द कंटेंट ऑफ स्टॉक इज क्लियर टू ऑल. So children, the next in sequence we have what is called as revenue. Children, it's simple to understand. Money coming from a recurring or regular source. That is, children, take an example. Amount received or receivable from sale of goods. बच्चों, आपने बिजनेस में गुड्स बेचे, पैसे या तो आपको मिल गए या मिलने वाले हैं, तो इट इज रेवेन्यू. रेंट मिला बच्चों आपको, कमीशन मिला, डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, बच्चों ये भी बिजनेस के लिए रेवेन्यू है. दैट इज रिलेटेड विद द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस एंड शुड ऑल्सो बी रेगुलर इन नेचर. तो चिल्ड्रन, टेक एन एग्जाम्पल. अगर आपके स्कूल में फी डिपॉजिट हो रही है, स्टूडेंट्स पेरेंट्स आर डिपॉजिटिंग द फी, सो दैट फी फॉर द स्कूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेवेन्यू एज सच. इफ यू आर अ लैंडलॉर्ड और आपने ढेर सारी प्रॉपर्टीज रेंट पे लेट आउट की हैं, तो बच्चों जो आपको रेंट मिल रहा है दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू. तो चिल्ड्रन, यू कैन अज्यूम दैट सेल ऑफ गुड्स से जो पैसा बिजनेस को मिलता है, कैश में मिले या डेटर्स कल को लाके दें, इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू. बट चिल्ड्रन रिमेंबर, द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर और लोन विच इज बोरोड फ्रॉम द बैंक, इट इज नॉट रेवेन्यू बच्चों, क्योंकि वो रेगुलर सोर्स नहीं है. बच्चों, आई हैव टेकन एन एग्जांपल. विशाल एंटरप्राइजेस bought goods worth rupees 1,20,000 and out of this 90,000 worth of goods were sold for 1,35,000 rupees. So children, this 1,35,000 is called as revenue. Children, I hope so the content of revenue is clear. Related term है बच्चों profit. बच्चों ये आपने पढ़ा हुआ है, मैथमेटिकली आप बोलते थे, क्लास 5th 6th से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. थोड़ा सा बच्चों इसको एडवांस्ड कर दिया है. जिस चीज को आप सेलिंग प्राइस बोलते थे वो आज रेवेन्यू है, और जिसको आप कॉस्ट प्राइस बोलते थे इट इज एक्सपेंसेस और द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स दैट वी हैव सोल्ड. चिल्ड्रन, फॉर क्लैरिफाइंग दिस आई हैव टेकन एन एग्जांपल. विशाल एंटरप्राइजेस बॉट गुड्स वर्थ 1,20,000 एंड इन्होंने आउट ऑफ दैट, पूरे गुड्स नहीं बेचे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 95,000 रुपीज के गुड्स को ही 1,35,000 में बेचा है. All 120 worth of goods have not been sold. 95,000 rupees के गुड्स को बच्चों इन्होंने बेचा 1,35,000 में. So children, this 1,35,000 is the revenue and 95,000 को ही बच्चों आप एक्सपेंस बोलोगे या कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स विच हैव बीन सोल्ड. तो चिल्ड्रन, 1,35,000 माइनस 95,000 you get what is called as your profit as such. तो बच्चों याद रखिएगा, एक्सपेंसेस पूरे 1,20,000 के नहीं है, इट इज ओनली दैट वर्थ जो आपने गुड्स सेल किए हैं. बच्चों, हम अगले टॉपिक को जो पढ़ेंगे दैट विल बी एक्सपेंस एज सच, जिस पे हम 95,000 को फर्दर क्लियर करेंगे. तो बच्चों याद रखिएगा, जो आपने टोटल बाय किया दैट इज नॉट योर एक्सपेंस. आपने जितने के गुड्स सेल किए हैं, जितने में सेल किए, दैट इज योर रेवेन्यू. बट द पोर्शन विच हैज बीन सोल्ड ऑफ, उस पोर्शन की जो कॉस्ट होगी बच्चों, आप उसी को एक्सपेंस बोलोगे. तो चिल्ड्रन, आई होप सो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट इज ऑल्सो क्लियर हैंड इन हैंड. सो चिल्ड्रन, कंटिन्यूइंग फर्दर वी हैव एक्सपेंसेस. बच्चों, एक्सपेंसेस की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ एनी शॉर्ट टर्म बेनिफिट दैट इज डिराइव्ड बाय द बिजनेस. Children, I have taken the content from the above example only. It said, out of this goods worth 95,000 were sold. Children, out of these goods worth 95,000 were sold. तो बच्चों ये 95,000 रुपीज के गुड्स ने आपको बेनिफिट दिया, तो यही आपका एक्सपेंस होगा. तो बच्चों डेफिनेशन गोज लाइक दिस, एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू. जिस चीज से बच्चों आपके बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट हो वो कॉस्ट ही आपका एक्सपेंस है. एग्जाम्पल्स आर रेंट पेड, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम. तो चिल्ड्रन, एक्सपेंसेस आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. Whichsoever cost gives you benefit, जो भी लागत आपको फायदा दे बच्चों, वो आपके बिजनेस का एक्सपेंस है. एग्जाम्पल्स रेंट, सैलरी, बिल्स एटसेट्रा. तो चिल्ड्रन, इन तीनों चीजों को कंपेयर करेंगे तो हमको एक्सपेंसेस का मतलब समझ में आएगा. थैंक यू चिल्ड्रन.